नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ JVN डॉक्टर S बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6M and others, course Pedagogy of Civics, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today our session topic name is preparation of a unit tests. We will discuss both language, English and Hindi. First in English, then after Hindi. Introduction. When the new academic session begins, before the students can breathe newness, the exams are at the door. Enthusiastically knocking. There is only unit testing here, and very little efforts to crack them. This is just the beginning. One by one, the exams give a choice. Therefore, you have to prepare for examination. How to study for unit test? First point is study for preparation. If you have 5 subjects that you need to study for the exam, there are only 24 hours in a day, and there is no way in which you can read all subjects on a single day. If you do this, you will still find it difficult to maintain your teachings, and you may have to start over again. To break the circle, one must plan their studies efficiently. The study plan has to be reviewed periodically to check its progress. When you complete a task on the scheduled time, it was served to inspire you. And second point is take short but frequent breaks. Do you know that teen attention span is 10 to 20 minutes? When the brain reaches its saturation point, it is meant to blow off steam by not retaining a single thing you have read. Therefore, to make the study effective and retain more information, take a break of 5 to 10 minutes every half an hour. Third is make your own notes. Many students require additional labor, but the effect made it note it. Make your own study notes. Use a mind map. Remove key points, steps of a particular concept that you find difficult. You will be
surprised to see how this simple activity can help you to increase your score. Next, modify when diligence. The human mind in a terrible habit for forgetting things. You do not come in contact again and again, automatically goes to the back of the mind, and it remains until you come in contact with it again. This is why you may find it difficult to remember those concepts or formulas. We should diligently revise our education. And fifth is get a good night's sleep, especially the night before the exam. Even when you take it, does your brain does its thing in the back end. It processes and maps information. In other words, it enhances memory. We should sleep well on the night before the exam. Sixth point and last is take care of your health. The last thing you want is to fall ill before the exam. So, avoid junk food and maintain a balanced diet. Make sure you stay hydrated by drinking at least 8 glasses of water every day. This session prepared by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur Rajasthan. Let's see in Hindi. Students, प्रिय स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है, टॉपिक है, वो है प्रिपरेशन ऑफ ए यूनिट टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन की। जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो इससे पहले कि छात्र नएपन में सांस लें, नए माहौल में सांस लें, परीक्षाएं दरवाजे पर होती हैं, जोश से दस्तक दे रही होती है। यहाँ केवल इकाई परीक्षण होता है और उन्हें क्रैक करने के लिए बहुत कम प्रयास होता है। यह सिर्फ शुरुआत होती है, एक एक करके परीक्षाएं चुनौतियाँ देती हैं, इसलिए परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है। यूनिट टेस्ट के लिए अध्ययन कैसे करें, अब हम बात करते हैं, जिसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है तैयारी के लिए अध्ययन। यदि आपके पास 5 विषय हैं जिन्हें आपको परीक्षा के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें आप एक ही दिन सभी विषयों को पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको अपनी शिक्षाओं को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। सर्कल को तोड़ने के लिए अपनी पढ़ाई कुशलता से योजनाबद्ध करनी चाहिए। अपनी प्रगति की जांच करने के लिए समय समय पर अध्ययन योजना पर दोबारा गौर करना पड़ता है। जब आप किसी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करते हैं तो यह आपको प्रेरित करने का काम भी करता है। दूसरा पॉइंट है, छोटे लेकिन लगातार ब्रेक लेने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि स्टूडेंट या विद्यार्थियों का ध्यान अवधि 10 से 20 मिनट तक होता है। जब मस्तिष्क अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंचता है, सेटिस्फैक्शन पर पहुंचता है, तो यह आपके द्वारा पढ़ी गई एक भी चीज़ को बनाए नहीं रखकर भाप को उड़ाने के लिए होता है। इसलिए अध्ययन को प्रभावी बनाने और अधिक जानकारी को बनाए रखने के लिए हर आधे घंटे में
5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाएं। देखिए, कई विद्यार्थियों को अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन किया गया प्रयास इसके लायक है। अपने स्वयं के अध्ययन नोट्स बनाने चाहिए, दिमागी नक्शे का प्रयोग करना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकालना चाहिए। एक विशेष अवधारणा के चरण जो आपको कठिन लगते हैं, आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि यह साधारण गतिविधि आपको स्कोर बढ़ाने में कितनी मदद करती है। अगला बिंदु है परिश्रम से संशोधन करना। चीज़ों को भूलने के लिए मानव मन एक भयानक आदत है, एक जटिल आदत है। हम बार बार संपर्क में नहीं आते हैं, स्वचालित रूप से मन के पीछे चला जाता है, और जब तक आप फिर से इसके संपर्क में नहीं आते हैं तब तक यह बना रहता है। और यही कारण है कि आपको उन अवधारणाओं या सूत्रों को याद करना मुश्किल हो सकता है। हमें परिश्रम पूर्वक अपनी शिक्षा को संशोधित कर देना चाहिए। अगला बिंदु है रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए। खासकर परीक्षाओं से पहले की जो एक रात है, यहाँ तक कि जब आप खुद खुराक लेते हैं तो आपका दिमाग बैकएंड में अपनी बात करता है। यह सूचनाओं को संशोधित और मैप करता है। दूसरे शब्दों में यह स्मृति या ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। परीक्षा से पहले रात को हमें अच्छी नींद जरूर ले लेनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग शांत होकर नए जोश के साथ परीक्षा में हमारी मदद कर सके। और अगला और नेक्स्ट जो बिंदु है, पॉइंट है, वो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सही बात है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका शरीर सही है तो आप आराम से सब काम कर सकते हैं, आपका काम में मन लगा रहता है। ठीक है। आखिरी चीज़ तो जब आप चाहते हैं वह परीक्षा से पहले बीमार पड़ना है। ठीक है। जंक फूड से बचना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है। बैलेंस जो आपका जो आहार है वो होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। ठीक है। पानी पीजिए और खाने का संतुलन बनाए रखें, तो जिससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप इजी वे में अपना काम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके यूनिट टेस्ट के लिए अध्ययन करने के लिए ज़रूरी हैं। आज का जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है। तो ऐसे ही आप आगे से आगे वीडियो देखते रहें, जिससे आपके जो सेशन है वो समय पर और अच्छे से कंप्लीट हो सके। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।